कल पढ़ा था रेस्पिरेशन. I saw respiration as simply the breakdown of food, yeah, breakdown of nutrients inside our cells, inside our to release energy in the form of ATP. तो ये तो वुच है सरात. ये सोई ATP जो से मुख्तलिफ काम में इस्तेमाल करान. तो वक्त पर वक्त चीज सेल में जो से माइटोकॉन्ड्रिया आसान छु वक्त पर वक्त हसा छु पत ये ATP यानी कि एनर्जी सप्लाई साइन से ले बहरहाल ये थोड़े सरात. तो आज शायद पढ़ूं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है. दफा जिससे रेस्पिरेशन छु रेस्पिरेशन इसके 2 टाइप्स है. एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा है एनएरोबिक रेस्पिरेशन. बट ये एरोबिक रेस्पिरेशन यह करो डिस्कस वुश्तो. ये एरोबिक रेस्पिरेशन समझ खातर ये जरूरी लकड़ मकड़ स्टोरी तुम वन. We'll take a small story in order to understand this aerobic respiration. ठीक है. तो यहां पे मैंने सपोज एक सेल ली है. ठीक है. तो ये साथ इंटेस्टाइन पे सपोज ये स्मॉल इंटेस्टाइनस तो अत पे द्रो न्यूट्रंट्स. तो ये न्यूट्रंट्स ट्रांसपोर्ट कर थ्रू ब्लड. ठीक है. ये विलायन ये ब्लड ट्रांसपोर्ट गसान प्रेत कुन सेल नश तो आखिरकार वत न्यूट्रंट्स कत मज अत सेल मज यम वत यथ मज. यम साथ न्यूट्रंट्स अत मज वत अतन जो 3 चीज यानी कि देयर आर सम सेल ऑर्गेनेल्स यम अम खतर अतन मैनेजमेंट करान न्यूट्रंट्स यथ मज यतन लकुट मकुट सेल. यहाँ पे देखो यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल है एक जिसका नाम है साइटोसोल. यहाँ पे है फूड वैक्यूल ये मैं इस तरह बनाऊंगा. और यहां पे और एक सेल ऑर्गेनेल है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. अब देखो स्टोरी क्या है. अब यहां पे देखो ना. हेलो. if we take an animal cell inside the animal cell there are some cell organelles. This is the cytosol, this is food vacuole, and this is mitochondria. When nutrients that are coming from small intestines entered into the cell, when the nutrients entered into the cell, these nutrients are firstly received by the cytosol. At the initial time, they are received by cytosol. Now, a simple process is happening inside the cytosol that's called as glycolysis. So what is glycolysis? It is simply when glucose is converted into pyruvic acid. But inside the cytosol. But here the important point is that in the cytosol there is no need of oxygen. Oxygen is not needed inside the cytosol and the process is going on inside the cytosol. This means that glucose is converted into pyruvic acid. So what the process means, this process is called as glycolysis. So what is glycolysis? It is simply the process by which glucose is converted into pyruvic acid inside the cytosol in absence of oxygen, but this process takes place here. And till now there is no ATP, till now there is no releasing of any molecule of energy. This is simple pyruvic acid. After that, the pyruvic acid is further transported. The pyruvic acid is further transported inside the mitochondria for further breakdown. And inside the mitochondria, there is further breakdown of pyruvic acid. And this pyruvic acid is converted into carbon dioxide plus water plus ATP. But here the oxygen is needed. Why?
inside the mitochondria, inside the mitochondria. So the process by which pyruvic acid is converted into carbon dioxide, water, and this is called as Krebs cycle. Krebs cycle. Here the end product we must need. This is ATP. We need it badly. This is the energy. This is the currency of energy, we can say. बहरहाल मे बेवन बह कशर पे वो मेस स्टूडेंटस गई कॉन्सेप्ट वन कशर पे समझ ठीक है आई हेट इंग्लिश मुझे इंग्लिश नहीं आती है देखो बह वन इत ये सात न्यूट्रंट्स योर अचान कई साइटोजालस मज साइटोजाल करान ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट आव ग्लूकोज आव व्हाट एम कोर ब्रेक डाउन ये ग्लूकोज कोर एम कन्वर्ट कथ मज साने ग्लूकोज कथ मज गो पायरुविक एसिड गो एम कोर ब्रेक डाउन एम बनो बदल अख सबस्टेंस मगर ध्यान थो अतन ऑक्सीजन जरूरत अमिस ऑक्सीजन वर अम पे क्या कर वन ऑक्सीजन वर अम कोर पायरुविक एसिडस मज चेंज पायरुविक एसिड पत शिफ्ट करान कमिस मज माइटोकॉन्ड्रिया बे करान ब्रेक डाउन पायरुविक एसिडस ये पायरुविक एसिड ये ब्रेक डाउन अम गो तो यह कोर कन्वर्ट कैंसन चीजन मज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर तो यह सू कार्बन डाइऑक्साइड इस वापस त्रावान ठीक अच्छा यह सू वाटर इस नबर नेरान चाहे सो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन नेरा इन द फॉर्म ऑफ स्वेट नेरा अर्क वगैरह ये वही वाटर है ठीक है ना उसके बाद यहाँ पे एटीपी है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट तो यह मॉलिक्यूल आसान मगर यह एनर्जी अतन रिप्रेजेंट करान यह सो एनर्जी यस मुख्तलिफ कामन मज इस्तेमाल करान यस आज रेत गो पढ़ान बराबर मगर अख चीज आव मे समझ यह एरोबिक रेस्पिरेशन अक्सर वन जनरली सारी अमिच डेफिनेशन यह सह रेस्पिरेशन यथ मज ब्रेक डाउन फुडस गसान एनर्जी रिलीज गसान मगर ब्रेक डाउन गसान बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन बाय द हेल्प ऑफ दपो सरन ने वो ऑक्सीजन दलील अगर ऐ ध्यान थोमुत मे वन ऑक्सीजन दलील मे वो माइटोकॉन्ड्रियास मज पायरुविक एसिड कन्वर्ट इन चीजन मज गसान अतन ऑक्सीजन इज नीडेड ऑक्सीजन इज अगर से स्कूलन मज पढ़ ना तत वन सर वन यह दलील तत वन सोदी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सो ऑक्सीजन कतन यह पता ये मैं नहीं बोल सकता समझ आ रहा है तो अब हम इसको अच्छे से लिखेंगे अच्छे से समझेंगे देखो देखो बवनस गोडनती इट इज द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन या सच आप किस्म कम को रेस्पिरेशन in which breakdown of food takes place in presence of by the help of oxygen किस मत से क्या हाँ कोई बात नहीं ये आप खुद भी लिख सकते हो ना हाँ इट इज द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच ब्रेक डाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन के मद सह ब्रेक डाउन अत मज गसान यह सुई ऑक्सीजन इस चवान अम पे कर बह अम पे वन बह ये रिएक्शन अमिच वो रिएक्शन ऐ खेवुत यह बत म्योन अत मज द्राव ग्लूकोज ग्लूकोजस क्या फार्मूला C6H12 O6 यह कुन थो रिएक्शन को नजर पत तरो यह गो कन्वर्ट गोडनथी कथ मज वन मे वन पायरुविक एसिडस मज गो यह कन्वर्ट मगर कथ मज इन साइटोजॉल ठीक अतन ऑक्सीजन जरूरत ना ऑक्सीजन जरूरत इन साइटोजॉल नो ऑक्सीजन इज नीडेड साइटोजालस मज गो ऑक्सीजन अतन जरूरत कहें यह प्रोसेस
आज इस वनान ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है ना यहां तक। उसके बाद ये पायरुविक एसिड यह गो वन अत पे शिफ्ट साइटोजॉल पे कोत वोत माइटोकॉन्ड्रियास मज वोत ना, ततन क्या थो नजर, ततन कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी, एटीपी मतलब गई एनर्जी। मगर स प्रोसेस यथ मज पायरुविक एसिड गो यमन चीजन मज कन्वर्ट, तथ वन क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल, ठीक है ना। लेकिन ये किस में होती है, बवनस इन माइटोकॉन्ड्रिया, इन माइटो बवनस ऑक्सीजन इज नीडेड, ऑक्सीजन इज नीडेड। यह बनावान यह ऑक्सीजन जरूरत आसान यह चीज बनावान रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। यस वन एनाएरोबिक नो ऑक्सीजन नीडेड, ये क्या नो ऑक्सीजन, मगर कत मज ये फर्क समझ आया। फिलहाल तो